کشمور کے قریب کچے کے علاقے گبلو تھانے کے حدود میں ڈاکوؤں کے خلاف پولیس آپریشن کیا گیا ہے۔ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں بختر بند گاڑیاں APC چین کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں، پولیس کی کامیاب کارروائی میں انعام یافتہ ڈاکو ذوالفقار بنگوار کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ SSP کشمور زبیر نذیر کا کہنا تھا کہ شریف گینگ کے 2 ڈاکوؤں کو پولیس نے اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ گرفتار ڈاکو اغوا برائے تاوان، ڈکیتی، قتل، پولیس مقابلے اور بچوں کے اغوا میں ملوث تھے۔ ملزم ذوالفقار علی اور شیر باز بنگوار سے TT پسٹل، شارٹ گن اور سینکڑوں گولیاں برآمد ہوئی ہیں۔ ملزمان کے خلاف ضلع بھر میں 7 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ ڈاکوؤں کے سینکڑوں پناہ گاہوں کو بھی آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں امن و امان کی بحالی کے لیے سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈاکوؤں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری وکلا بار روم میں منعقد ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر شیخ رمضان ندیم اپنی اس رپورٹ میں۔ جی، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری وکلا بار روم میں منعقد ہوئی۔ ممبر پنجاب بار کونسل ملک محمد اقبال ثاقب ایڈوکیٹ نے 9 منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔ میں اپنا نام لیں گے بطور اپنا عہدہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ڈیرہ غازی خان کے آئین کا پابند رہوں گا اور حلف لیتا ہوں کہ میں وکلا برادری اور بار کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہ کروں گا اور ہر قسم کی ذاتی اور سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر وکلا اور بار کے مفاد میں سرگرم رہوں گا۔ میں حلف لیتا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی اور عدلیہ کے وقار کے لیے کسی قسم کی قربانی سے گریز نہ کروں گا اور بار کے پلیٹ فارم سے کرپشن کے خلاف اپنا آئینی اور قانونی کردار بھرپور طریقے سے ادا کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو۔ مبارک ہو جی سب کو، سب کو اس موقع پر 9 منتخب صدر قیصر عباس کھٹک نے وکلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، دیکھیں وعدہ میں نے پہلے کیا ہے، وعدہ میں اب کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے جو دوست یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا، وہ سب میرے بھائی ہیں، ان کو یہ محسوس کراؤں گا کہ میرا اس سال پریزیڈنٹ منتخب ہونا بار کے لیے بہترین تھا۔ رپورٹ شیخ رمضان ندیم، ڈسٹرکٹ رپورٹر میٹرو 1 نیوز ڈیرہ غازی خان۔ امریکی قونصلیٹ جنرل لاہور نے اپنے 2 رکنی وفد کے ہمراہ جامعہ گجرات کیمپس منڈی بہاؤدین کا دورہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر کیمپس میاں ظہیر الدین بابر نے فیکلٹی اور اسٹاف کے ہمراہ قونصل جنرل کے وفد کو خوش آمدید کیا۔ امریکی قونصل جنرل کو پنجاب کی پگڑی اور مقامی طور پر ہاتھ سے تیار کردہ گرم شالیں پہنائی۔ ڈائریکٹر کیمپس نے وفد کو ضلع منڈی بہاؤدین کی تاریخ اور یونیورسٹی آف گجرات سب کیمپس منڈی بہاؤدین کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ امریکی قونصلیٹ جنرل ولیم کے مکانیول نے طلبہ و طالبات کے پروگرام میں شرکت کی، جہاں طلبہ نے میوزیکل پرفارمنس کے ذریعے مہمانوں کو خوش آمدید کیا۔ قونصل جنرل نے طلبہ و طالبات سے خطاب میں پاکستانی اور امریکی عوام کے آپسی تعلقات بڑھائے جانے کی اہمیت پر روشنی بھی ڈالی اور طلبہ نے سوالوں کے تفصیلاً جوابات دیے۔ ڈائریکٹر کیمپس ظہیر الدین بابر نے مہمانوں کو شیلڈز اور تحائف پیش کیے۔ پتوکی میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث تاریخی ٹھٹھا قبرستان کوڑے کے ڈپو میں تبدیل ہو گیا ہے۔ شہری تعفن زدہ ماحول میں کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ انتظامیہ نے چپ سادھ رکھی ہوئی ہے۔ پتوکی چونیا روڈ پر واقع تاریخی قبرستان کوڑے کے ڈپو میں تبدیل ہو گیا۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ سارے شہر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے قبرستان کی مین دیوار کے ساتھ ڈھیر کر رہا ہے۔ متعدد قبروں پر
कूड़ा बिखरा हुआ है, जबकि इसकी वजह से शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। कब्रिस्तान नशे के आदी अफराद के आमाजगाह बन चुका है, जबकि कब्रिस्तान के सामने सेवरेज का गंदा पानी भी जमा होना मामूल बन गया है। इस खराब सूरत हाल पर शहरी कई दरख्वास्तें मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही, जबकि शहरियों ने शदीद एहतजाज करते हुए डीसी कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। सिंध के गरीब और पिसी हुई आवाम को फौरी मुफ्त इंसाफ मुहैया करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के साबिक जजेस ने इंसाफ के जल्द हुसूल के लिए लीगल सालसी कमेटियों के क़याम को इंतहाई ज़रूरी करार दिया है। सालसी कमेटी आवाम के मसाइल हल करने और इंसाफ फराहम करने के लिए मुफ्त कानूनी सर्विस देगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं उमरकोट से वकास यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। को फौरी इंसाफ मुहैया करने के लिए सेमिनार मुनक़द किया गया, जिसमें गरीब और पिसी हुई आवाम जो कि इंसाफ के हसूल के लिए सालों इंतजार करती है, इस लीगल एड फोरम की मदद से गरीब आवाम को जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस सिलसिले में आइन पाकिस्तान में मौजूद कानूनी शिकों पर भी आगाही दी गई, जिसमें मुसालती कमेटी शिकल में कानून मौजूद है। सेमिनार से खिताब करते हुए रिटायर्ड जस्टिस आरिफ खलजी ने कहा कि इंसाफ के जल्द हसूल के लिए मुसालती कमेटियों का क़याम ज़रूरी है। जब साइल और मुनसिफ एक साथ बैठे होंगे तो इंसाफ के जल्द हसूल में मदद मिलेगी। से एक जज जो एक अच्छे किरदार का मालिक हो, पब्लिक कॉन्फिडेंस हो, तो वो जब लोगों को कहता है तो लोग मान जाते हैं। और मुझे 18 साल में मुझे ये एक्सपीरियंस है कि मैं अगर उनसे थोड़ी बात करता हूँ, पूछता हूँ, वो बन जाते हैं, मसला ख़त्म हो जाता है। दिस इज़ द मीडिएशन। एडीआर है, ये हमारे आइन के तहत सपोर्टेड है और इसीलिए मुख्तलिफ कवानीन हैं एडीआर के और मीडिएशन के, और अब आजकल दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी इसका बहुत ज़्यादा रिवाज हो रहा है और लोगों को आगाही देने की ज़रूरत है। सिर्फ मीडिया इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है और लोगों को बता सकता है कि आपका मसलों का हल अदालतों से पहले मीडिएशन है। अगर मीडिएशन में ना हो तो फिर आप अदालत में जाएं। इसमें जैसा आपने देखा, मैंने कुछ डेटा भी शेयर किया। हमारे पास पुलिस स्टेशन पे जो मोस्टली केसेस आते हैं वो पेटी इश्यूज़ होते हैं सिविल नेचर के, जिनको हम एक फॉर्मल मैकेनिज़्म के तहत एडीआर के तहत अगर उनको हल करें तो ना सिर्फ पुलिस स्टेशन पे बोझ कम होगा बल्कि कोर्टों पे भी बोझ कम होगा और लोगों को स्पीडली जस्टिस मिलेगा। वो जो हम कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये कहानी ख़त्म हो गई, लोगों को फौरी तौर पर इंसाफ मिलेगा। वो ये है कि हमने जो हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसमें हमने तरामीम की है, जिस उस तरामीम के बायस जो मीडिएशन है, जो आप कोर्ट में जाए बगैर कोई कानून कोई अपना केस रिजॉल्व करा सकते हैं, तो उसको कोर्ट ने रिकग्नाइज़ किया और अपने सिस्टम का पार्ट, अपने प्रोसीजर का पार्ट बनाया है। तो जो हमारा कॉल सेंटर है जिसको हम स्लैक कहते हैं और जिसका टोल फ्री एक नंबर है जो आप हमसे ले सकते हैं, उसमें अगर आप वहाँ पर फ़ोन करेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लीगल एडवाइस दी जाती है। और उसमें अब हम यही चाहते हैं और हम यही बताते हैं जो हमारे पास कॉल्स आती हैं कि कोर्ट जाने के बजाय आप केसेस मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व कराएं। अदालत में जाने वाले केस से दूसरा केस बनता है। ऐसे में लीगल एड फोरम के तहत आइन पाकिस्तान के मुताबिक साइल को फौरी इंसाफ दिया जाए तो कोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट पर मौजूद बोझ कम किया जा सकता है, जबकि मसाइल के बोझ तले दबी आवाम को फौरी इंसाफ भी मिल सकेगा। कैमरा टीम के साथ वकास यूसुफजई, मेट्रो 1 न्यूज़ उमरकोट। खानका डोगरा के नवाही गांव रहमानाबाद का यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी नसीर अहमद घर बैठे तनख्वाहें वसूल करने लगे हैं। मजीद आपको बताएंगे, सफदराबाद की सबसे बड़ी यूनियन काउंसिल रहमानाबाद का सेक्रेटरी दफ्तर आने से कासिर है। हफ्ते भर में तकरीबन एक दिन बड़ी मुश्किल से आने का मामूल बने हुए हैं। मंगर चादर चौक, रहमानाबाद, सोखवाला, मरियमाबाद, अख्तराबाद और दीगर गाँव के लोगों, जबकि यूनियन काउंसिल के दफ्तर के बाहर सेक्रेटरी की गैर हाजिरी के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है कि सेक्रेटरी अरसे दराज से दफ्तर आना जरूरी ही नहीं समझते। दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर बुरा हाल है, जब भी आओ दफ्तर बंद होता है। अगर दफ्तर खुला भी हुआ हो तो सेक्रेटरी साहब गैर हाजिर होते हैं। अहले इलाके ने असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से मुतालबा किया है कि खुदारा इस सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और कोई काबिल अफसर तैनात किया जाए ताकि मुश्किलात का छुटकारा हो सके।
वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे जमात इस्लामी तहसील जतोई के अहदेदारान और कारकुनान ने कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन सिंध के खिलाफ प्रेस क्लब तहसील जतोई के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया है। मजीद जानते हैं जतोई से अपने नुमाइंदे हुजैफा आरबी की इस रिपोर्ट में। जमात इस्लामी तहसील जतोई के अमीर राव नईमुल्लाह की जेर क़ियादत प्रेस क्लब तहसील जतोई के बाहर कराची और हैदराबाद में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन सिंध और पीपल्स पार्टी के हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे से अमीर जमात इस्लामी राव नईमुल्लाह, लीगल एडवाइजर जाहिद खान, अब्दुल रज़ाक एडवोकेट, जाहिद हफीज और राव सरवर ने खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन सिंध के साथ मिलकर बल्दियाती इलेक्शन कराची और हैदराबाद में धांधली की है। कराची में पीपल पार्टी ने जमात इस्लामी की जीती हुई बहुत सारी नशिस्तों पर जबरदस्ती धांधली करके कब्जा करने की कोशिश की है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने फरमाया है कि हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझा जाए, हम अपना हक लेना जानते हैं और इंशाअल्लाह हम ये हक छीन कर रहेंगे। कुछ मामले को अगर न सुलझाया गया तो पूरे मुल्क को जाम कर दिया जाएगा। 9 सीटें जिनके फॉर्म 11 और 12 हमारे पास मौजूद हैं, उस हिसाब से उन फॉर्म 11 और 12 के मुताबिक हमने 9 सीटें जीती। जब रिजल्ट अनाउंस उन्होंने किया तो उसमें वो 9 सीटें उन्होंने पीपल्स पार्टी को दे दी। मुजाहिरीन का कहना है कि अगर फार्म 11 और 12 के तहत रिजल्ट ना दिए गए तो एहतजाज का दायरा कार वसी करते हुए पूरे मुल्क में भी एहतजाज कर सकते हैं। मोहम्मद हुज़ैफा आरबी, मेट्रो 1 न्यूज़, जतोई। रहीम यार खान में माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली प्लांट्स के खिलाफ इंतजामिया ने महकमा माहौलियात के हमरा कार्रवाई करते हुए फैक्ट्रियां मिसमार करके मालकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाली 2 टायर फैक्ट्रियां मिसमार कर दी गई। शहरी आबादियों के नजदीक टायर जलाकर ऑयल निकालने वाले प्लांट्स के बायस मुकामी अफराद को सांस का तकलीफ है, जिसके साथ ही सेहत आमा के मसाइल का सामना था। अवामी शिकायत पर महकमा माहौलियात और दीगर मुतालिका इदारों के हमरा कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर बनाए गए प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर मिसमार करके मालकान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि माहौलियाती आलूदगी का बायस बनने वाले प्लांट्स के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। डीपीओ मियां मोहम्मद अकमल ने तौसा का दौरा किया है और पिकेट बुखार और पिकेट चंगी पर किए गए इंतजामात का जायजा भी लिया है। डीपीओ मियां मोहम्मद अकमल ने मोर्चों को चेक किया और अहलकारान की रिहाइश और उनके खाने के लिए किए गए मैस के इंतजाम को चेक किया। चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी के इकदाम, तैनात नफरी असलहा, एमुनेशन, मोर्चों को चेक किया। सिक्योरिटी के इंतजाम को हर सूरत यकीनी बनाने और सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने के अहकाम जारी किए। डीपीओ मियां मोहम्मद अकमल ने अहलकारों को कहा कि मौजूदा हालात के पेश नजर पहले की निस्बत ज्यादा अहलकारान तैनात कर दिए गए हैं। आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए रिहाइश और बेहतर खाने के लिए मैस का बेहतर इंतजाम कर दिया गया है। लाड़काना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में रिटायर्ड मुलाजमीन के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद देखिए सलीम रजा की ये रिपोर्ट। मेहनत कश लेबर यूनियन सीबीए की जानिब से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाड़काना में सर्विस से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन के एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद इमदाद अली शाह, यूनियन के सदर रसूल बख्श शाहानी, अकाउंट्स ऑफिसर जुल्फकार अली अबड़ो, शामलाल करारा, साबिर अली अब्बासी, मुनवर सनरानो, फकीर असगर जतोई, कलंदर बख्श शाहानी समेत सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की, जहां पर रिटायर्ड मुलाजमीन को अजरक और टोपी का तोहफा पेश किया गया। ईमानदारी सापाजी ड्यूटी सरअंजाम दी और उनके हक में दुआए खैर मांगी गई। पूरी जिंदगी मेहनत कई जो इदारे से सच्चाई जो इज्जत ॾियण लाइ उन्हनि जो टाइम ॾिनो आहे वो लाड़काना जवान उनखे यादि कयूं। सर्विस में रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन जिनमें गुलाम लाई हाजानो, मंजूर धामरा, गदा हुसैन कात, मुजफ्फर भट्टी, यूसुफ मसीह, असद पठान, अब्दुल गफूर चन्नो, अली हसन, मंसूर अली और मुमताज अली शामिल थे। यहाँ पर मुकर्ररीन की जानिब से रिटायर्ड मुलाजमीन की म्यूनिसिपल के लिए की हुई खिदमत को सराहा गया। इन पैगाम के समझी इन ते गौर करे ऐं हमेशा पंहिंजी यूनियन खे मज़बूत करण लाइ मेहनत कश लेबर यूनियन सीबीए जी मौजूदा क़यादत जा हथ मज़बूत करो। रिटायर्ड मुलाजमीन ने अपनी मुलाजमत मुद्दत पूरी होने और उसकी अलविदाई तकरीब मुनक्किद करने पर ऑफिसर्स, यूनियन रहनुमाओं और साथी मुलाजमीन का शुक्रिया अदा किया।
कैमरा टीम के साथ सलीम रजा, मेट्रो 1 न्यूज, लाड़काना। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हासिल होते हैं एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल कहरोड़ शेख हाजी मोहम्मद असलम और शेख मोहम्मद खालिद असलम साबिक काउंसिलर ने सदर प्रेस क्लब और नौ मुंतखब काबीना के एहसास में पुरतकल्लुफ ज़ोहराने का एहतमाम किया है। मजीद आपको बताएं, नौ मुंतखब काबीना का फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया गया। शेख हाजी मोहम्मद असलम ने प्रेस क्लब के तमाम नौ मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। आशिक हुसैन कुरैशी को सदर प्रेस क्लब कहरोड़ पक्का मुंतखब होने पर खुशी का इजहार किया और अवामी मसाइल फौरी हल होने की उम्मीद जाहिर की। उन्होंने कहा कि कहरोड़ पक्का की आवाम की खुशकिस्मती है कि कहरोड़ पक्का के प्रेस क्लब में आशिक हुसैन कुरैशी दरवेश सिफ्त इंसान सदर मुंतखब हुए हैं, जो बेलौस अवामी खिदमात सर अंजाम देते हैं। उमरकोट में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की मरकजी क़यादत की अपील पर हेस्को सब डिवीजन की जानिब से अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास यूसुफ जई की इस रिपोर्ट में। रैली सब डिवीजन ऑफिस से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली की क़यादत सब डिवीजन चेयरमैन बादल रहमान कर रहे थे। रैली में बड़ी तादाद में हेस्को सब डिवीजन के मुलाजिमीन ने शिरकत की। रैली के शिरका हाथों में प्ले कार्ड उठाए अपने मुतालबात की मंजूर के लिए नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर हेस्को मुलाजिमीन का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि निजकारी का जो फैसला ये हुकूमत फिलफौर वापस ले, इससे मज़ीद बेरोज़गारी होगी, लाखों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और पहले भी मुल्क में बहुत महंगाई है, बेरोज़गारी है, और ये निजकारी का फैसला फिलफौर वापस ले। और जब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, जब तक ये अपना हमारे मुतालबात नहीं मान जाने, हुकूमत से अपील करेंगे जो निजकारी फिलफौर वापस ले। वापडा की जो निजकारी है उसके खिलाफ है। हुकूमत वक्त जो है आउटसोर्स फीडर करके उनको बेचना चाहती है, अपने मुस्तफीज़ हुए लोगों को बेचना चाहती है। हम ये साजिश माजी में भी कई हुकूमतों को हम फेस करते आए हैं, उनका मुकाबला करते हुए हमने उनको दस्तबरदार किया इस फैसले से। इंशाअल्लाह अभी हम अपने कायद के कहने पे, कायद के हुक्म पे शाना बशाना खड़े होकर इस साजिश को भी नाकाम करेंगे और ये कौमी इदारा है जो हम बेचने नहीं देंगे। साल बाद हमारे जो हैं हमारे कायदीन के हैं कि जो हमारे इदारे हैं वो कौम की खिदमत के लिए है, उनको आप जो नीलाम कर रहे हैं उस अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। जैसा कि पिछली हुकूमतों ने भी इस तरह के जो मुआहदे किए थे, लेकिन लेबर और हमारे कायदीन के पुरज़ोर मुतालबे पर वो सारे मनसूख किए गए हैं। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इसको रोक कर हमारे कायदीन से बातचीत की जाए और इस अमल को फौरी तौर पर रोका जाए। कैमरा टीम के साथ वकास खान इसुजई, मेट्रो 1 न्यूज, उमरकोट। सेक्रेटरी ज़राअत साउथ पंजाब ने गवर्नमेंट सीड फार्म एहसानपुर का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में तरक्की, फी एकड़ औसत पैदावार बढ़ाना, गवर्नमेंट ज़राई फार्म्स को मुनाफा बख्श बनाना और उनको इलाके में बतौर रोल मॉडल देखना और देहात में आवाम के मयारी ज़िंदगी बुलंद करना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। जनूबी पंजाब का ज़रखेज़ खित्ता पूरे मुल्क की खुराक की ज़रूरियात पूरी कर सकता है और यहाँ पर फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद तलहा शेख ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गंदम की पैदावार को हर सूरत में बढ़ाना है और जिला भर के किसानों के साथ 24 घंटे राब्ते में रहेंगे। मॉडल बाजार गुजरांवाला में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मैनेजर मॉडल बाजार आदिल सज्जाद की ज़ेरे निगरानी बाजार के अतराफ को साफ सुथरा करने के साथ साथ बाजार में तजावुजात के खात्मे के लिए खुसूसी ऑपरेशन भी किया गया है। मॉडल बाजार में आने वाले साफिन को खुसूसी रिलीफ दिया जा सके और सब्जी और फल, करियाना और दीगर हर सतह के स्टॉल्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव अयाज अहमद की तरफ से आवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुरोनोश की फराहमी यकीनी बनाने की सख्ती से हिदायत भी की गई है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि आवाम को ताज़ा सब्जियां और फल के मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और खरीदारी के गर्ज से आने वाले सार्फिन को साफ सुथरे माहौल की फराहमी यकीनी बनाने के साथ साथ बाजार से बारियायत अशिया की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। उन्होंने बाजार के दौरे करके इस दौरान सफाई सुथराई, सिक्योरिटी समेत दीगर उमूर का जायजा लिया। झंग में खवातीन की दाद रसी के लिए आईजी पंजाब का अहसन इक़दाम। आईजी पंजाब की पॉलिसी पर अमल करते हुए डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने लेडी सब इंस्पेक्टर रुकैया रजा को एसएचओ थाना सिटी झंग तैनात कर दिया है। इसी हवाले से मजीद आपको बताएंगे, झंग की तारीख में पहली खातून सब इंस्पेक्टर को एसएचओ तैनात कर दिया गया है। लेडी सब इंस्पेक्टर रुकैया रजा इससे कबल लीगल ब्रांच और थाना मोचीवाला में बतौर तफ्तीशी ऑफिसर फराइज सर अंजाम दे चुकी हैं। डीपीओ झंग राशिद हिदायत का कहना है कि इस इक़दाम से खवातीन को मर्दों के
के शाना बशाना सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा। खवातीन हर शोबे में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। लेडी SHO की तैनाती से पब्लिक सर्विस डिलीवरी में मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान बार कौंसिल ने 6 माह के कॉम्प्रोमाइज वाले फैसले को मुअत्तल करार दे दिया है और नौ मुंतखब सदर को भी हटा दिया गया है। कहरोड पका बार में राना सज्जाद अतरा एडवोकेट को केयर टेकर सदर मुकर्रर कर दिया गया है क्योंकि फैसला इलेक्शन के बगैर हुआ था, जिसमें काफी वकीलों को एतराज था। हर दफा आरिफ कमाल नून ग्रुप मर्जी का फैसला जबरदस्ती मुसलत कर देते हैं, मगर ऐसा अब नहीं चलेगा। जिन्ना आबाद 3 मरला स्कीम में हमसाये ने अपने हमसाये अदनान कुरैशी और 11 साला बच्ची को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया है। 4 फायर बच्ची को जबकि अदनान कुरैशी को मुतादिद गोलियां मारी गईं। DSP जहानिया अब्दुल करीम, सब इंस्पेक्टर चौधरी मकसूद अहमद सिद्धू ने जख्मी के बयान पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिस्टल बरामद कर लिया। मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी। शोरकोट कैंट में सरकारी आटा ब्लैक में फरोख्त होने लगा है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को भी तरसने लगे हैं। आवाम आटे के हुसूल के लिए सारा दिन जलील और ख्वार होने लगे। आटा डीलर हजरात मनमर्जी के लोगों को ब्लैकमेल में आटा फरोख्त करने लगे हैं, जबकि आला अफसरान ने चुप साध रखी है। आवाम ने हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज करते हुए नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। तहसील चौक सरवर शहीद तहसील तो बन गई, मगर उसके हालात नहीं बदल सके हैं। बल्दिया चौक सरवर शहीद की नाकामी वाज़े तौर पर नजर आ रही है, जबकि गंदगी के ढेर लग गए। सीवरेज का पानी लोगों के घरों में दाखिल होने लगा। हमारे रिपोर्टर रज़ाउल्लाह खान इस वक्त मजहर मार्केट में मौजूद हैं। वहां की क्या सूरत हाल है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा। यहाँ बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील चौक सरवर शहीद की मज़र मार्केट में। अगर सफाई के हवाले से बात की जाए तो यहाँ बल्दिया की जो है ना एली वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है। ये इलाका जो है ना कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। सीवरेज का निज़ाम इंतहाई बदतर हो चुका है। गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। शहरी इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद इस हवाले से इनसे जान लेते हैं। जी सर, सफाई का निज़ाम इंतहाई दरम बरम है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर से इस बारे में कोई बात की है, उनको इस बारे में आगाह किया है? उनका क्या कहना है? जी, हम ये जो हमारा इलाका है मज़र मार्केट, इसमें बहुत ज़्यादा कचरे के ढेर हैं। इंतज़ामिया वाले खुद यहाँ आके फेंक जाते हैं। हम इस कचरे से बहुत ज़्यादा तंग हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर साहब, AC साहब को भी हमने 2-3 दफ़ा दरख्वास्त भेजी है, लेकिन वो कुछ अफसरान इधर भेजते हैं, तस्वीरें वगैरह बना के चले जाते हैं, लेकिन ये बातें तस्वीरों तक महदूद रहती हैं। इससे आगे कुछ काम नहीं हो रहा। हमारी गुजारिश है कि हमारे इस जगह का काम किया जाए। हमें साफ़ सुथरा माहौल चाहिए। इस वजह से, इस गंदगी की वजह से हमारे बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका भी यही कहना था कि सफाई का निज़ाम इंतहाई दरम बरम हो चुका है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कोट अदू और असिस्टेंट कमिश्नर चौक सरवर शहीद को बारहा इस सिलसिले में आगाह किया है, मगर ये सरवर शहीद को तहसील तो बना दिया गया है, लेकिन काम के लिहाज से जो है ना कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ की इंतजामिया जो है ना वो सुस्त रवि का शिकार है। उनका यही कहना है कि हमारे जो सफाई वगैरह का निज़ाम है, इसको जो है ना मेहरबानी करके ठीक किया जाए। जैकबाबाद में गैर कानूनी तौर पर गंदम की स्मगलिंग पर DFC और फूड सुपरवाइजर को मुअत्तल करके वसीम जमाली को DFC तैनात कर दिया गया है। जैकबाबाद सेक्रेटरी खुराक राजा खुरम शहजाद ने जैकबाबाद से गंदम की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलविस होने पर DFC जैकबाबाद काजी रफीक और फूड सुपरवाइजर गुलाम मुस्तफा अनर को मुअत्तल कर दिया है। मज़कूरा कार्रवाई चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर अमल न करने, गफलत और गंदम की स्मगलिंग के बुनियाद पर की गई है। मुअत्तल अमले को फौरी महकमा खुराक में बगैर किसी ताखीर की रिपोर्ट करने की हिदायत भी की गई है। गंदम और आटे की जैकबाबाद के रास्ते बलूचिस्तान और अफगानिस्तान स्मगलिंग की वजह से मुल्क में आटे का बहरान आया और आटे की कीमतें आसमान को पहुंच गईं। वसीम जमाली को DFC जैकबाबाद तैनात किया गया है। जैकबाबाद से ही आपको खबर देंगे, जहां करोड़ों रुपए की लागत से टफ ट्रायल से जेर तामीर सड़कें नाकस मटेरियल की वजह से टूटने लगी हैं। शहरी दोहरी अजियत का शिकार होने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद देखते हैं जैकबाबाद से अब्दुल नबी खोसो की ये रिपोर्ट। ये अलीसन ठेकेदार ने काम किए, करोड़ों रुपए की करप्शन की है। लाखों करोड़ों का करप्शन बहुत हुआ है हमारे पास। ये टफटाइल का काम जो है अली हसन फहीम ने जो किया है, अपनी जेब भरने के लिए सिर्फ काम किया है। इन्होंने
नाकारा मटेरियल के साथ काम किया, इन्होंने करप्शन ज़्यादा किया ठेकेदारों ने। जैकबाबाद शहर में ये जो टफ टाइल का काम हुआ है ना, ऐसा समझो तो पूरा मुकम्मल नाकारा काम हुआ है। इन्होंने नाकारा मटेरियल के साथ काम किया, इन्होंने करप्शन ज़्यादा किया ठेकेदारों ने, इनके खिलाफ नोटिस लिया जाए। हम आला इदारों से अपील करते हैं। पहले ये कहना चाहता हूँ कि इधर जो सारा भी काम किया गया है सारा नाकाम काम किया गया मेरे भाई। क्या है देख रहे हो, सारा रोड फटा हुआ है, क्या है तो सारा लाखों करोड़ों का करप्शन इधर बहुत हुआ है हमारे पास। शहरियों ने हुकाम से अपील की है कि सड़कों के ठीकों की तहकीकात कराकर जिम्मेदारों को सजा दी जाए। ये जेर तामीर सड़कें न सिर्फ नाक्स मटीरियल बल्कि ठेकों में करप्शन की दास्तान सुना रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल नबी खोसो, मेट्रो 1 न्यूज, जैकबाबाद। और इसके साथ ही शहरनामे से फिलहाल इतना ही।